सकते हैं कि बिकॉज हमारी फैमिली ओके रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है. As we are aware about the title of the session, be kind to your mind. Mental health plays an important role as our physical health does. It can affect how we think, feel, and act, and determines how we handle stress and make eventually all the decisions of our life. Nowadays, mental health has emerged as one of the major concerns and taking a turn into even worse. Now, I think all people have joined and it's about to 7 p.m. So to talk about the importance of mental health and the strategies to cope up with these running health crises due to the COVID-19 pandemic, we have with us Dr. Bush Kavuru and Dr. Sachin Vasudeva. We all welcome you, sir, and we are grateful for your presence among us. Now, let me introduce our guests to all of you. Though it is very tough to explain their work, services, and accomplishments in such a short introduction, but I'll try to explain. Dr. Bush Kavuru is specialized in adult and geriatric psychiatry and medical psychiatry, and he is a board certified psychiatrist in Roanoke, US. Our another guest, Dr. Sachin Vasudeva, is specialized in addiction psychiatry and general adult psychiatry and is a board certified psychiatrist. Now, before moving to the questions we are going to ask our guest, I would like to mention the efforts of college students who initiated the Abhikriti Foundation and give all of us this opportunity that we are all connected today. And we are here to discuss about the importance of mental health. I know we have all our perceptions about the difficulties and situations we face individually for our families and loved ones. So we all have queries and questions related to our perception. You are all allowed to put up your questions in the chat box. But before that, I will be questioning some general questions to the sir. Before my questions, I would like to call Dr. Bush Kavuru to interact with us and present his views on the mental health. Thank you, Manisha. And good evening to all the families and friends in India. And I thank Dr. Vasudeva for joining this evening. And before we go ahead, anything I share, it will be my own personal opinions. I work here for the government. And so none of this is coming from any organization where I work for. It's all my personal opinions as a professional. And I would want Dr. Vasudeva to probably share the same thing in Hindi, if you don't mind, sir. Not at all. So please unmute. Dr. Sachin Vasudeva, please unmute your first. Sorry. It's okay. Can you hear me now? Yes, sir. You're audible. I see. It's good to see everyone. Namaskar. Dr. Kavuru की तरह मैं भी एक सरकारी अस्पताल में यहाँ काम करता हूँ, तो we are required to state कि ये सारे opinions हम लोगों के हमारे employer के नहीं हैं. और दूसरा ये भी कि although mental health में बहुत issues आते हैं, अगर कोई specific issue दवाइयों या safety के issue से related है, तो please अपने डॉक्टर से जरूर बात कीजिए, but we can always come back to that later. आप तो शुरू करें डॉक्टर कपूर. Good. I think in the last 2 years, we're all struggling with this. And initially it came in China, then it went to Italy, then it came to New York. And last year, everybody in India were worried about us. Our families, that because we're all doctors working in the hospitals, they were worried, and we were all isolated, schools were all closed, and what you're all facing now, we were there. And I have lost my family members, and I lost closest of my cousin last year. And
there was no family left in India where, if you ask, someone have lost their loved one in each family, or someone had a severe illness like that. So anxiety and worry and depression has been common. Even myself, I felt under stress being a psychiatrist. So that's a natural phenomena. This, no, in the last 100 years, none of us have faced this kind of a calamity, including doctors. They were caught off guard, don't know what to do. So feeling anxiety and depression was common. Just in the last 1 month, since it has started in India, I had two situations I wanted to share, which would probably ring bell with each one of us. I have a family member. She's a cousin of mine. उनका husband का second time bypass surgery हुआ था 4 हफ्ते के पहले. उस सर्जरी के लिए उनका बेटी and her husband and his son, everybody was there. So heart surgery was successful. वो डॉक्टर ने कहा कि आज तो ये कोविड का केसेस बढ़ रहा है, अब तो घर जाइए. तो 5 दिन के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया, घर आ गया. और बेटी और her husband दे चले गए. आफ्टर 3 दिन के बाद ने बेटी ने फोन किया कि मुझे बुखार हुआ है, मेरे हस्बैंड को बुखार हुआ है, हम दोनों पॉजिटिव आ गया कोविड, तो आप जाके टेस्ट करवाइए. तो my sister-in-law, she went and she got tested. She came positive. Her husband, जिनको bypass surgery हुआ second दोबारा, वो positive हो गया. उनका son भी positive हो गया. So सारा family positive है, except for the 2 elderly people at home. So she's taking care of a heart patient who had a surgery. And now the fear is that how it will turn out. He is the most riskiest patient. And उनका जो एंजाइम से लैब वर्क है, they all went up. And she is the one, what she did is that she only talked to one doctor वहाँ पे. And she only spoke to my wife, who is a doctor here. Or she did not lift phone for any other family member. क्योंकि सभी लोग फोन करना, ये करो, वो करो, घर में पकाने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर से ला सकते हैं, ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, इस तरह की, इतना देर क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो किया है. She says that kind of talk was very negative to me. So she basically listened to one doctor, my wife, and she prayed a lot. And she said, बहुत घबराहट हो रहा है उनको. She acknowledged it. But she said, घबराहट होने से क्या फायदा मुझे अभी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं देखभाल करना है. And by the time her son-in-law, who's a young man, उनका बुखार खराब हो गया और उनका pulse ox तो it dropped to around 90s. He went and they admitted him. So now she has a son-in-law who is admitted, and she has a husband at home, and she herself have COVID positive. So my wife is telling, why don't you take care of yourself? Are you eating properly? Are you taking the medications? And her son is also positive. And she has 2 elderly patients at home. She has to make sure they don't turn positive. With her resilience and the God's grace, everybody turned out to be good. The son-in-law got discharged home, he's working back now. And her husband doing well. So this is really puzzled me, because sitting here, because I'm a doctor, I know what can go wrong. मुझे घबराहट हो रहा है. And I was really amazed how she handled. Another example is, I have a niece in another town who's a doctor. And her parents are both double vaccinated. And her mother, my sister-in-law, she was home, she didn't go out. And one day she said, I'm having some cold. And the next day she said, I don't have any smell, I don't have any taste. तो टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आ गया.
And my niece, wo doctor, she got panicky. She said, this is the thing I am trying to avoid. Whole 1 year मैं कोशिश कर रहा हूँ ये नहीं होना चाहिए, वो हो गया और रोना कर दिया फोन पे. And jaldi the next day she got her CT done, blood work done, everything done, and she already talked to one local doctor, मेरे से बात कर रही थी, and another doctor, and she really freaked out. And we had to calm her down. Things turned out very good there too. But I see the contrast between a doctor who knows what can go wrong, how much anxiety she went through, a non-doctor who had high anxiety, so many patients, but at the same time, she also have high anxiety, but she managed it well. So in these situations, the anxiety, the fear, the concern, the worry, what are the ways best you can cope with them? That is, this is what's happening in every household. And each one of us have our own strengths. Definitely we have them. So taking these two examples, I felt the one person has used some coping skills in terms of minimizing some outside distractions. And what she did is that she knew things can go bad, but she took to spirituality. And she took to taking right advice and talking to one person on a regular basis to share what's going on with her. So communicating with the one person whom they trust, sharing it, and not taking too much of different resources of information or misinformation. And at the same time, knowing she has anxiety and try to, she took spirituality, as I mentioned, pradhana kar rahi hai, Baba ji ko, Shirdi Sai Baba devotee she was, so she was reading that. The another person who is a doctor, she did well, but she rather overcharged herself in terms of worrying what can go wrong. And she also talked to people. Actually, that calmed her down. She tried to get the right information. So those are the two examples I have. Excuse me, sir. Excuse me. Sorry to interrupt, but one of you have to unmute. One of you have to mute your. Yeah. Yes, I'm mute. Sorry. Good. Thank you. Okay. Thank you. Yeah. So if I ask you, Dr. Vasudeva, are there any ways when people are at home, if they're feeling really panicky when somebody comes positive, and if they are worried what can go wrong, are there any things they can calm down immediately using any mindfulness ways? Dr. Kavuru, I'm so glad कि आपके परिवार में जो 2 एग्जांपल्स आपने दिए वो सब लोग ठीक हो गए, रिकवर कर गए. आमतौर पे जब हम लोगों को कोई भी एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन होती है, तो अगर हमें ये पता है कि हमारे लिए पहले क्या काम किया है, पहले what has worked for us before, what has helped us in the past, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि वो स्पिरिचुअलिटी में थी आपकी सिस्टर इन लॉ, और वो साईं बाबा के बारे में पढ़ के उन spirituality helped her a lot. So if we know something जो पहले काम किया है, it is very important कि वो ही करते रहें क्योंकि उससे फायदा होता है. पर उसके अलावा कुछ टेक्निक्स हैं जिन्हें यहाँ पे हम लोग ग्राउंडिंग टेक्निक्स कहते हैं. जैसे कि अगर मन में बहुत हलचल हो रही है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, कुछ और दिमाग में नहीं आ रहा, वही बात बार आए जा रही है, तो मन को उन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करके किसी और चीज़ पे ध्यान लगाने के लिए कुछ चीज़ें हैं. जैसे कि अगर घर में फ्रीजर में बर्फ रखी है या कुछ और रखा है, तो अगर आप सिर्फ उसको हाथ में लेके 1-2 मिनट पकड़े रखेंगे, तो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंसेशन. वो आपके हाथ में जो सेंसेशन है वो आपको पता लगेगी, और मन जो है वो एटलीस्ट उन कुछ सेकंड्स मिनट्स के लिए बाकी की बैकग्राउंड में जो चल रहा है, जो
जो फिक्रें चल रही हैं उनसे हट जाएगा। इन्हें ग्राउंडिंग टेक्निक्स कहते हैं। एक और एग्जांपल है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी फ्रूट ले लें, उसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दें, फिर जब आप उसको निकालेंगे ठंडा होगा, भारी होगा। अगर आप उसको हाथ में लेके सिर्फ उस पे थोड़ा-सा ध्यान दें, तो भी ध्यान बाकी चीज़ों से हट जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रूट से करें या बर्फ़ से करें। अगर आपको प्रैक्टिस है परमात्मा पे ध्यान लगाने की, तो आप परमात्मा पे ध्यान लगा सकते हैं। अगर आप योगा करते हैं, तो आप अपनी साँस पे ध्यान देके अपने मन को अ अ, दुःख से, शोक से, सोचने से, एंग्ज़ायटी से दूर करके अ, किसी और चीज़ पे लगा सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोग ये पहली बार ट्राई कर रहे हैं कि we will be successful. We may be successful only for a very short period of time. हो सकता है कि सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ध्यान किसी और चीज़ से हटे, लेकिन बार-बार प्रैक्टिस करने से we get better at doing that. Uh, Self-care is very important in such a situation. अगर जैसे डॉक्टर कपूरी ने बताया, अगर उनकी सिस्टर इन लॉ जो थी वो भी पैनिक कर जाती और उस पैनिक में बाकी सबका ख्याल ना रख सकती, तो वो बहुत मुश्किल सिचुएशन होती। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपना भी ख्याल रखें अगर आप दूसरों का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप किसी और का ख्याल रख सकें। डॉक्टर कपूरू, आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे? I think I have nothing to add related to that. I think the echo is less now. Is that right? Because I moved to another room. So unmute, if you both unmute you, then only the echo is produced. You can ठीक है. unmute yourself one at the time. Okay. Yeah. Yeah. So Even there now, will be when no Dr. echo then. Vasdeva was speaking, I Yeah. muted myself, Yes, and sir. but I moved to another room so that there will be less echo. Yes, Um, sir. and so, uh, Manisha ji, what is your Yes, first sir. question? So my first question is how one can survive in COVID, considering the recovery rates, rumors, and being COVID positive is not a big deal, but the stress and tension make it more complicated and make a person's health even worse. So what are your suggestions for that? What are your suggestions? So I think if you look at it, one is if some person taking all the precautions and they don't have anybody in the house got infected. ठीक है? Mm. फिर भी उनको थोड़ा सा एंग्जाइटी होता है Yes. क्योंकि वो टीवी पे समाचार देख रहे हैं और सुना है कि पर लाइक यू नो द नेक्स्ट डोर नेबर को हुआ है और वो सुनता है कि अंकुल को हो गया, तो बिना उनको इफेक्ट होने पर भी ये घबराहट हो सकता है. So if you are in that situation, one thing, common things, what we are advising most of them is limit your media exposure. ठीक है? हमारा पास WhatsApp है nowadays, and we have this Facebook, and we have TV channels around the clock. So if you can curfew, अपने आप में कर्फ्यू लगाना कि मैं सुबह एक बार मैं वार्ता सुनूंगा और शाम को एक बार, वो भी एक स्पेशल रिलायबल रिसोर्स से. ठीक है? दूसरा ऐसा है कि सारे दिन कैसे बीतना है, अपने आप जो काम होता है उस पे ध्यान लगने के लिए. फिर लेकिन हम हमेशा हर 10 मिनट 10 मिनट काम करते भी व्हाट्सएप को चेक करते हैं, फोन को चेक करते हैं, एंड इट बिकेम अ हैबिट. If you can probably stop using your phone that frequently,
अगेन ध्यान लगाना जो भी काम कर रहे हैं. If I'm working from home, if I'm a computer guy, I'm running a project, but every 10 minutes I'm checking my WhatsApp messages from the friends. Why should I do it? Because one of those messages could be related to somebody who passed away, or some kind of a message about new medication, or some political opinion, jo bhi hai. So for every 10 minutes, we are being pulled into this COVID news or Corona news, even though you're working from home. Suppose if I'm a householder, while I'm cooking, still I'm checking it. Okay? Now, in case if you're checking it, then make it sure it is something which will bring a smile on your face. If you have a group of friends, वो भगवान के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, or if it is related to some spiritual discussion, entertain those groups. And if it is something funny, and something about sharing a good photograph, a flower, or something like that. So limit your media exposure there. Also, you can get prepared for it in terms of what if we get infected, what to do. Now, nobody has to tell in India, everybody has that. You know so much of information. The second thing is that what if somebody really gets infected? Now the picture, the corona has entered into our houses. That is when the panic becomes much more higher. And the thing is that correct knowledge will help. But once you have the correct knowledge, how you are implementing it. If the doctor says, don't take steroids until second week, आजकल तो क्या हो रहा है? Immediately after that, you're trying to go for a pharmacy and try to get some steroids, or talk to somebody else, try to have some steroids and use them. Or oxygen cylinder, okay, I need oxygen concentrator. So uske baad pe घबराहट हो रहा है. Otherwise, going and getting a test done, and then immediately the test is like a little bit positive or lower, you're worried about what's going to happen for it. So this is a level of higher level of anxiety. And again, at that level, you probably have to stick to one doctor, have somebody with whom, and you have to trust them. Okay? And suppose pulse oxes. You're checking pulse ox every 1 hour. Uske जरूरत नहीं है लोगों को. If the doctor says check 3 times a day, walk 6 feet, then you have to do that. Because when the COVID comes, everybody's worried, am I going to die? That is the main thing. मरने की डर है यहाँ पे. डॉक्टर, इवन वैक्सीन लगवाने के जस्ट बाद भी लोग एंटीबॉडी टेस्ट कराने जा रहे हैं because they are doubtful that vaccine is working or not. You are absolutely right. यहाँ the thing is that when you are anxious, डॉक्टर बुश प्लीज हिंदी में आप अगर कन्वे कर सके मैसेज, तो बिकॉज ऑडियंस वो हिंदी की डिमांड कर रही है. ठीक है. Dr. Vasudeva, can you help me here in terms of? Sure, Dr. Bush, Dr. Kavuru. So, जो Dr. Kavuru कह रहे थे, इंग्लैंड में एक स्टडी की थी उन्होंने पिछले साल मई में, जब उन्होंने पूछा लोगों से कि आपको सोशल मीडिया इस पैंडेमिक में कितना हेल्प किया, तो करीब 66% लोगों ने, 66% लोगों ने ये कहा कि सोशल मीडिया वाज नॉट हेल्पफुल. तो जैसे डॉक्टर कवूरू कह रहे थे कि सारा दिन व्हाट्सएप देखना या कुछ देखना, जिससे सिर्फ वो सेंस ऑफ एंजाइटी और पैनिक बढ़ता है कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. और ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है. जैसे डॉक्टर कवूरू कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि सब बहुत 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 सालों से ऐसी कोई महामारी हम लोगों ने नहीं देखी. बहुत 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 सालों से ऐसा कोई दुश्मन हमारे पास नहीं, हमारे सामने नहीं आया जैसा ये कोविड आया हुआ है. तो जितनी राय हम ज़्यादा लेंगे, और ये बिल्कुल रीजनेबल लगता है कि
अगर मैं इस स्पेशलिस्ट से भी बात कर लूँ, उससे भी कर लूँ, उससे भी कर लूँ, उससे भी कर लूँ, मैं 6 ओपिनियन ले लूँ ताकि क्या पता क्या काम कर जाए। लेकिन जब ओपिनियंस भी कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं और रिसर्च में बेस्ड नहीं होते, जैसे कि जैसे आपने कहा कि वैक्सीन लगवाने के 2 दिन बाद एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवाने चले गए, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है और वो ज़्यादा एंग्ज़ायटी जनरेट करते हैं। सोनिया जी ने पूछा कि अगर किसी को कोविड से एंग्ज़ायटी ना हो, किसी अपनी फैमिली प्रॉब्लम से हो, तो उसके लिए क्या करें? एंग्ज़ायटी एकदम से एक दिन में नहीं आ जाती। एंग्ज़ायटी दिन लगते हैं, हफ़्ते, महीने, साल लगते हैं डेवलप होने में। और ये एक्सपेक्ट करना कि मैं आज कुछ करूँगा जिससे मेरी एंग्ज़ायटी कल चली जाए, अ, वो बहुत अनरीज़नेबल एक्सपेक्टेशन है। तो कोशिश करते रहना है एंग्ज़ायटी कम करने की। अ, कोविड जैसे सिचुएशन में या कोई और एंग्ज़ायटी प्रोवोकिंग सिचुएशन है, अ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग मानें कि हाँ, ये मुश्किल सिचुएशन है, अगर इसमें भी एंग्ज़ायटी नहीं होगी, तो कुछ एबनॉर्मल है। अगर परिवार में किसी की कोई गुज़र जाता है कोविड से या किसी और चीज़ से, तो अगर उनके गुज़रने पे शोक ना हो, वो एबनॉर्मल है। लेकिन किसी के गुज़रने पे उदास होना, शोक करना, अ, आँसू आना, रोना, फ़िक्र करना, वो बहुत हद तक नॉर्मल चीज़ें हैं। तो अगर हम सारा वक़्त अपना इसमें लगा देंगे कि जो नॉर्मल रिएक्शन है, उससे हम झगड़ा करते रहें, तो बाकी के काम करने की एनर्जी नहीं रहेगी। अ, तो पहले ये ज़रूरी है कि एक्नॉलेज करें कि जो हो रहा है, उससे मन उदास है। अ, कई बार यही एक्नॉलेज करने से कि जो अ, व्हाट आई एम अंडरगोइंग, जो मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अ, वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं है, उससे ही काफ़ी तसल्ली मिल जाती है कि बजाय ये सोचने के कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। ठीक है कि बहुत ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ फ़िक्र, कुछ उदासी, कुछ शोक, कुछ दुःख स्ट्रेसफुल चीज़ों में नॉर्मल होते हैं। और जैसे डॉक्टर कपूर कह रहे थे, ये ज़रूरी है कि हम अ, खबरें भी सुनें, व्हाट्सएप भी देखें, अ अ, सोशल कॉन्टैक्ट में भी रहें, लेकिन अगर अपने आप को लिमिट करें कि सुबह आधा घंटा अखबार पढ़नी है या शाम को आधा घंटा, 1 घंटा न्यूज़ देखनी है। लेकिन अगर आप सारा दिन न्यूज़ देखेंगे या सारा दिन मैसेजेस पढ़ते रहेंगे, जिसमें कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उससे वो एंग्ज़ायटी बढ़ती ही है, कम नहीं होती। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऐसे करें कि अगर आप जयपुर में हैं और आपकी अ, चाची आगरा में हैं, अगर आप उनसे फ़ेस टाइम कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो मैसेज कर रहे हैं उनका हाल-चाल पूछने को, तो वो उनके लिए भी सपोर्टिव है, आपके लिए भी सपोर्टिव है। अगर आपको किसी और की फ़िक्र हो रही है, आपकी अ, नानी अजमेर में रहती हैं और आप जयपुर में हैं और आप उनसे बात करते हैं, तो उनको भी तसल्ली मिलती है कि आप ठीक हैं, आपको भी तसल्ली मिलती है कि वो ठीक है या उन्हें देख लिया। ऐसी चीज़ों में सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस ज़रूर है और उसे यूटिलाइज़ करते रहना चाहिए। हेलो सर। हेलो। हाँ जी। सर मुझे ये पूछना था, थोड़े से आप सिम्टम्स भी बताएंगे कि एनजाइटी के क्या होते हैं? एक्चुअली इससे कई लोग सोच लेते हैं कि हमें एनजाइटी ही है, तो आप जी, थोड़ा सा प्लीज उसका भी एक बार बता दीजिए। जी, सुनिए एंग्ज़ायटी कहते हैं फ़िक्र को, जैसे हिंदी में फ़िक्र कहते हैं कि एक ही चीज़ का बार-बार दिमाग में घूमते रहना। अ जैसे मैं ये कर लेती तो ऐसा होता, मैं ये कर लेती तो वैसा होता, मैं ऐसा ना करती तो वो ऐसा ना कहते, मैं ऐसा कहती तो वो ऐसा कहते हैं। नॉन कोविड सिचुएशंस में, कोविड सिचुएशंस में ये कि क्या अगर ये हो गया तो क्या होगा? अगर ये ठीक नहीं हुए तो क्या होगा? इनके बिना हम कैसे जिएँगे? अ, ये जिसे कैटास्ट्रोफाइज़िंग कहते हैं कि ये सोच लेना कि जो सबसे बुरी पॉसिबिलिटी है, वो होगी। फिज़िकल सिम्पटम्स एंग्ज़ायटी के होते हैं कि दिल बहुत ज़ोर से धड़कते रहना लगना कि हार्ट रेट बहुत बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाना, सिर दर्द ज़्यादा होना, नींद ना आना रात को क्योंकि दिमाग में वही बातें फिर से घूमती रहती हैं। ये सब सिम्पटम्स हैं एंग्ज़ायटी के। So our तो next concern is
how to stop overthinking, because overthinking की वजह से I think mental pressure हमारा ज़्यादा बढ़ रहा है. So how to ignore some thoughts? Right. The first thing is to realize कि हम overthink कर रहे हैं. मेरे एक प्रोफेसर थे साइकाइट्री के, वो कहते थे कि मधुबाला जो एक्ट्रेस थी, बहुत सुंदर थी. कोई जी. दो राय नहीं है कि she was very beautiful. लेकिन अगर आप उनकी स्किन को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें तो उनकी स्किन बहुत ही गंदी लगेगी. It would be ugly. उनकी स्किन बदसूरत लगेगी अगर आप उसको उनके स्किन को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें. तो जब हम किसी भी चीज़ को ओवर एनालाइज करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, तो कुछ अच्छा नहीं लगता. इसलिए पहली बात ये है कि ये हम रियलाइज़ करें कि हम किसी चीज़ को ओवर थिंक कर रहे हैं, और फिर दूसरा है कि हम अपने आप को उससे डिस्ट्रैक्ट करें. यहाँ पे एक अमेरिका में प्रेयर्स यूज़ करते हैं, जिसे सेरेनिटी प्रेयर कहते हैं. वो है कि भगवान मुझे ये शक्ति देना कि जो चीज़ें मैं बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ, उनको मैं बदल सकूँ. जो चीज़ें मैं नहीं बदल सकता, मुझे उन्हें सहने की शक्ति देना, और मुझे ये विज़डम देना, मुझे ये ज्ञान देना कि मैं ये उन दोनों चीज़ों में फ़र्क अपने आप को बता सकूँ. कुछ चीज़ें हम लोग बदल सकते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग नहीं बदल सकते. जो हम नहीं बदल सकते, वो हमें सहनी पड़ेंगी. और सहने का ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा दुखी परेशान रहें, लेकिन कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप संतरा फ्रीजर में रख देंगे 5 मिनट के लिए और उसको लेंगे, हाथ में पकड़ने से ही वो इतना ठंडा होगा कि मन अपने आप और किसी चीज़ पे नहीं जाएगा. अगर सिंपल सी एक्सरसाइज, अगर आप अपने हाथ लेके हथेलियाँ आगे की तरफ करके ज़ोर से स्ट्रेच करेंगे, आपकी उँगलियों में वो स्ट्रेच आता है. अगर आप करके देखें, कुछ और ख़्याल अगर मन में हैं, तो वो भी 1-2 सेकंड के लिए, 4-5 सेकंड के लिए ज़रूर चले जाएँगे, क्योंकि वो जो स्ट्रेच आपके हाथों में है, वो आपको महसूस हो रहा है. इसी तरह योगा करने से, कोई भी अगर आप आसन करते हैं, और फिर से आई वांट टू रिपीट दैट अगेन, कि ये चीज़ें एकदम से फ़र्क शायद सिर्फ़ कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स के लिए करें, लेकिन जितना हम इनको प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही आसान हो जाएगा ओवरथिंक करने से और मन को किसी और चीज़ पे डिस्ट्रैक्ट करने से. अगर आप चाय या कॉफ़ी का कप भी लें और उस पे ध्यान दें कि ये सफ़ेद रंग का कप है, इस पे ग्रे रंग की ऊपर लाइनिंग है, ये मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है. मेरी एक उँगली इस कप के हैंडल में भारी है, कुछ भारी है, पर 200 ग्राम का होगा शायद. और फिर आप घूंट लें और उस सिप को मुँह में रखें. आप उसका फ्लेवर एप्रिशिएट करें कि उसका चाय है तो उसमें इलायची है, उसमें आपको पत्ती का टेस्ट आ रहा है, आपको उसमें चीनी का टेस्ट आ रहा है, वो कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, ज़बान के अगले हिस्से पे महसूस हो रही है या पिछले हिस्से पे महसूस हो रही है. सिर्फ रोज़मर्रा की ऐसी चीज़ों से भी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, जो कि हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करके उसको पूरे दिन में कर सकते हैं. डॉक्टर कवूरू एक एग्ज़ाम्पल दिया करते हैं कि अगर आप अपने किचन में जाएँ और कोई भी मसाले का डब्बा खोल के उससे सूंघें या अगरबत्ती जलाएँ और उससे सूंघें, वो स्मेल इतनी पावरफुल होती है कि कुछ सेकंड के लिए आप और कुछ चीज़ नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ़ आपको उसकी स्मेल आती है. चाहे वो गरम मसाला है, चाहे वो हल्दी है या कुछ और है. लेकिन ये छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स हैं अपने आप को किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. बड़े एग्ज़ाम्पल्स भी हैं, आप पूजा कर रहे हैं, अगर आप आरती कर रहे हैं, तो और भगवान पे कॉन्संट्रेट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपका ध्यान भगवान पे लग गया है या आरती करने पे लग गया है, ताकि बाकी की चीज़ें आपके दिमाग में ना आएँ. डज़ दैट मेक सेंस? क्या ये कुछ अपनाने वाली चीज़ें लग रही हैं? Yes, sir, of course, these are very small things we can inculcate in our lives. So, 1 second. ध्यान हटाने के लिए. या Yes, डिस्ट्रैक्ट ध्यान हटने के लिए तो, और आपने जो डॉक्टर वासुदेव ने बताया कि हम हर दिन की जो
दैनंदिन कार्यक्रम में क्या क्या कर सकते हैं, क्या बदल सकते हैं। दूसरा है कि किससे हम हटना चाहिए, किससे हम हटना चाह रहे हैं, क्योंकि डर है कि क्या हो जाएगा। एंड fear of death is very common in COVID. And sometimes we think of the worst, क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल एडमिट होने में बेड मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, क्या हो जाएगा ग्रैंड पेरेंट्स को, इफ यू हैव टू काम करने के लिए जरूरत है, बाहर जाने अंदर आने से हम एक कोविड घर में shall we may be bringing home, इस तरह की कई तरह की थॉट्स भी आ सकते हैं। नाउ इफ यू थिंक इट, समटाइम्स सामना करना अच्छा है, जो भी डर है उसको सामना करना अच्छा है। किससे मैं डर रहा हूं, क्योंकि आप जो क्वेश्चन अपने आप से पूछने से, डरने से अभी क्या फायदा हो रहा है मुझे, ठीक है, वो मुझे जो परफॉर्म करना है, मेरा जो दिन की काम करना है, उसमें तो कोई यूज नहीं है डरने से। फिर लेकिन जो डेंजर है वही भी है, वो मैं worry होने से डेंजर हो जाएगा, दूर नहीं हो जाएगा। जो जो भी है ट्रूथ है अबाउट कोविड कोरोना है। नाउ इंस्टेड ऑफ वरीइंग, इफ आई से ओके जो भी है, मैं उसके बारे में नहीं सोचने से जो भी टाइम मिलेगा, मैं उसके कंस्ट्रक्टिवली आई कैन वर्क ऑन इट। So instead of trying to run away from what is bothering you, उसको सामना करना अच्छा है, क्योंकि जो डर है और उसके साथ हमेशा एक थॉट भी होता है, ठीक है। So your thinking can help you to cut down your worry too. The one thing you can do is that जो हमारा ब्रेन में है, there is like an alarm है, ठीक है, कार अलार्म होता है, घर में फायर अलार्म होता है। As Dr. Vasudeva mentioned it, कुछ तो कुछ डर होना नेचुरल है। अब बिना डर होने से वो something is wrong there. So, but you don't want to keep on pressing the alarm again and again. So you need to know what is the benefit I'm getting by worrying about it, and what is the risk I'm inviting by keep worrying. So I think Dr. Vasudeva, if you can translate it. So we all have understood. My next ठीक है। question is, मनीषा जो- आप क्वेश्चंस हिंदी में पूछिए प्लीज। हाँ जी बिल्कुल। सर जो अपने फैमिली के साथ लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना फिर भी इजी है, बिकॉज वो घर में अपने पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ बैठ सकते हैं या अपने पेट्स के साथ खेल सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पैंडेमिक के दौरान अकेले भी रह रहे हैं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल इस हद तक बढ़ गया है कि कुछ लोग दूसरों से बात करना तक पसंद नहीं करते, इवन अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं करते। सो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे उनके माइंड से ये थॉट्स क्लियर आउट किए जा सकते हैं? यहाँ पे एक चुटकुला है मनीषा जी के लाइट बल्ब बदलने के लिए कितने साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। तो उसका जवाब ये है कि वो इस पे डिपेंड करता है कि लाइट बल्ब बदलना चाहता है या नहीं बदलना चाहता। जी तो बिल्कुल। जो लोग अकेले रहते हैं या किसी के साथ भी रहते हैं, कोई भी चीज बदलने के लिए, किसी ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि प्रोक्रास्टिनेशन कैसे हटाएं। कोई भी आदत बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो और जब तक कि इंसान खुद ना बदलना चाहे तब तक वो बदलाव लाना भी मुश्किल है। लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं और अकेलेपन में एंग्शियस हो रहे हैं या फिक्र ज़्यादा कर रहे हैं, अब किसी घर में पौधा रखना जिसकी आप देखभाल कर रहे हैं, अगर बच्चे नहीं हैं, वो डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। खाना बनाना डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। कुछ लोग जैसे मेरी बीवी, जिनका नाम यहाँ पे आ रहा है शिखा वासुदेवा, जब उनको फिक्र होती है तो वो घर की सादा सफाई करती हैं, क्योंकि उनको सफाई करने से लगता है कि उनकी फिक्र दूर हो रही है। अगर आपके घर में कोई पेट है, कुत्ता बिल्ली पड़ोस में है,
उसके साथ खेलने से मन हल्का हो सकता है, म्यूजिक सुनने से मन हल्का हो सकता है। अकेले रहने से कोई ये कहने वाला नहीं है कि अब आप ये करो या अब आप वो करो। आप जब चाहें म्यूजिक सुन सकते हैं, आप जब चाहें उठक-बैठक कर सकते हैं अपने कमरे में, आप जब चाहें अ, योगासन कर सकते हैं। तो अकेले रहना इज़ वेरी आइसोलेटिंग। वो कहते हैं कि जब हमें ये लगता है कि हम अकेले किसी मुश्किल से गुज़र रहे हैं, तो वो मुश्किल बहुत बड़ी लगती है, पर जब ये लगता है कि सारी दुनिया उस मुश्किल से गुज़र रही है, तो उसका कुछ डाइल्यूशन हो जाता है, वो कुछ हल्की हो जाती है। लेकिन अकेले रहने पे ये कोई तरीका मुझे नहीं पता जो कि वो अपने माँ-बाप को या अपने दादा-दादी को, नाना-नानी को, चाचा-चाची को ज़्यादा फ़ोन कर सके। लेकिन अगर वो चाहें, तो वो अपनी फ़िक्र को कम करने के लिए अपने कमरे में एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, अपने म्यूज़िक सुन सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, अ अ, खाना बना सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं जिससे कि उनका ध्यान हटे। यहाँ पे जैसे डॉक्टर कवूरू शुरू में कह रहे थे माइंडफुलनेस और पूछ रहे थे कि डिस्ट्रैक्शन के लिए क्या एक्सरसाइज़ेज़। जब आप सुबह ब्रश करते हैं, तो आप कितनी जल्दी से ब्रश करते हैं और दिमाग में कितनी चीज़ें होती हैं कि अभी मुझे बच्चों का खाना बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल जाना है, मुझे अपने काम के लिए लॉग इन करना है, ये सब कुछ दिमाग से घूमता रहता है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ ब्रश करते हुए भी ये सोचें, मैंने उस दाँत को ब्रश कर लिया, अब अगला है, अ, मैं ज़बान फेर के देखता हूँ कि वो दाँत साफ़ हुआ या नहीं हुआ, क्या मैंने दाँतों को अंदर से भी साफ़ किया या नहीं किया। सिर्फ़ ऐसी चीज़ें करने से भी अ, अब सारे डॉक्टर कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं कि हमें कम से कम 2 मिनट के लिए ब्रश करना चाहिए। मेरा ख़्याल से मैं नहीं कभी 2 मिनट के लिए ब्रश करता, लेकिन अगर हम कोशिश करें कि मैं हाँ, 2 मिनट के लिए कर रहा हूँ और 2 के ढाई मिनट हो गए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। उससे भी बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है बाकी चीज़ों से। ये जो फ़िक्र है इसे कहते हैं कि स्नोबॉल करती है कि एक बार हम फ़िक्र शुरू करना शुरू करते हैं, तो वो बढ़ती जाती है। अगर हम उसको कहीं भी नहीं रोकते, तो वो बढ़ती ही जाती है। अ, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि अ, थोड़े से टाइम के लिए दिमाग को उस फ़िक्र से ब्रेक मिल जाए, ख़ासकर जब वो फ़िक्र बहुत ज़्यादा है, ताकि हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। अभी कोई नई स्टडी नहीं है लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने टीनेजर्स को देखा था कि नवयुवक 13 और 20 साल के बीच के उन्होंने लिए थे कि जब वो अपने कुत्ते या बिल्ली के साथ 10 मिनट खेलते थे, तो उनके स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कुत्ते-बिल्ली से ही खेलना है, लेकिन आप अपने तुलसी के पौधे को भी ध्यान दे सकते हैं। आप अपने कमरे की डस्टिंग कर सकते हैं। आप अपने स्कूटर को, कार को धो सकते हैं। उसी को धोने से क्योंकि आप दिमाग कहीं और लगा रहे हैं, अपना ध्यान कहीं और लगा रहे हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्शन मिलती है जिस चीज़ के बारे में आप फ़िक्र कर रहे हैं उससे। मुझे ये भूल गया कि आपका सवाल क्या था मनीषा जी? तो यही सवाल था कि अकेले होते हुए हम किन-किन चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं? My next question is, One more thing, if I want to add, is that helping others. You may yes, sir, be please. alone, but if you are capable of helping somebody else, it always brings you the satisfaction and it will always give you the courage. Yes, sir. And it will help you to overcome your own fears when you're trying to help other person. Yes, And it doesn't mean that you need to go into the hospital and help take care of a COVID patient. It's not like that. Even if you want to go and get a milk packet for the next door neighbor who cannot, or even if you can rather deliver the food that they need it, or if you can do an online order for somebody, any छोटी सी चीज दूसरे लोगों के हम कर सकते हैं, and that will bring you a lot of satisfaction. Simple acts of kindness. Go ahead, If I can Manisha ji. add real quickly to what Dr. Kavuru said, किसी की सिर्फ बात सुन लेना, अगर आपके कोई दोस्त, सहेली, अ, भाई-भाभी फ़ोन करके कुछ कहते हैं कि उनको इस चीज़ की फ़िक्र हो रही है या इस चीज़ की परेशानी हो रही है। हो सकता है कि वो आपसे सजेशन माँग रहे हों कि क्या करना चाहिए या क्या करना नहीं चाहिए। लेकिन सिर्फ़ अगर आप उनकी बात सुन लेंगे
तो भी उनको तसल्ली मिलेगी और उनकी मदद करने से इन टर्न आपको तसल्ली मिलेगी। And what Dr. Vasudeva said, keep this in mind. I always do this for myself. What I would advise the another person, suppose something is bothering me, I would say, if I am advising another person, what would I tell them? Trust me, you will get the best advice you will give to others. And if it is good for them, why it is not good for me? वो सोचना चाहिए. So if you are really freaking out or panicky, take a minute. ये दूसरा आदमी को होने से मैं क्या कहता हूँ उनको? वो मेरे पास आके दोस्त मैं इसमें फंस गया, कुछ सलाह दो. Give me some advice. What I would tell them. And trust me, whatever the top 2 things you will tell them, you say, if it is good for him, why not good for me? This is a way you can distract and get the best advice out of your own self. Even if you're alone, you can help yourself by thinking what I would tell the other person. Yes, sir. Go ahead, Manisha ji, next question. तो अभी तक हमने ये बात की कि हम अपनी एंजाइटी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं या फिर अपने थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट कैसे करें स्ट्रेस से बचने के लिए. लेकिन जो आजकल स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन अपनी स्टडीज कर रहे हैं, वेदर दे आर स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट्स हैं, वो अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ज्यादा हो रहे हैं ऑनलाइन स्टडीज की वजह से. तो वो कैसे अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाते हुए डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं? बिकॉज उनके माइंड में हमेशा ये पॉपअप रहता है कि कोविड के बारे में ही हमेशा चलता रहता है कि कोविड की न्यूज देख ली, या फिर बच्चों के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं डिस्ट्रैक्ट होने की. तो कैसे खुद पे ज्यादा कंसंट्रेट कर पाए, कैसे अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर पाए? Dr. Vasudeva, do you want to take about listening to the children aspect of what you were mentioning the other day? Dr. Kavuru, I couldn't hear what you said. I'm sorry. No, the other day you're talking about role of parents listening to the children, especially when they're having a tough time, what it could do, benefit for them in this context. Right. So, जो छोटे बच्चे हैं वो तो आमतौर पे खेलने वगैरह में लगे रहते हैं, so it's easier for them. It depends on the temperament of the children too, लेकिन it's important कि माँ बाप वगैरह सब बच्चों की बात सुने, उनके fears क्या हैं. कुछ बच्चों को ये एंग्जाइटी या स्ट्रेस होता है कि मेरे पेपर टाइम पे नहीं होंगे, मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, मैं फेल हो जाऊंगा, या मेरी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, वो एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे या पोस्टपोन हो जाएंगे. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर कि सारे बच्चे, पूरा देश, पूरा द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू दिस. सबके सब उसी बोट में है, सबका वही हाल है कि और एटलीस्ट अमेरिका में तो कॉलेजेस भी कह रहे हैं कि हम लोग ये कंसिडरेशन में लेंगे कि जो बच्चे इस वक्त 12वीं पास कर रहे हैं या पिछले साल 12वीं पास की, कि वो इस स्ट्रेस में थे कि और हो सकता है कि इस वजह से वो पूरी पढ़ाई ना कर सके हों वगैरह वगैरह. कुछ बच्चों के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो स्ट्रक्चर मेंटेन करें, कि ये नहीं है कि 8:30 से 9:30 तक मैंने ये करना है, फिर 9:30 से 10:30 तक ये करना है. ज़्यादा रिजिडिटी की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो ये सोच लें कि मैंने 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को पढ़ाई ज़रूर करनी है, या पढ़ाई के अलावा मैंने रस्सी टापनी है, मैंने जंप रोप करना है ताकि मुझे कुछ ब्रेक मिल जाए. इट्स इम्पोर्टेंट कि जो बच्चे, जो टीनेजर्स खास कर हैं, एडोलेसेंट्स हैं, या जो 18-19 साल की उम्र के लोग हैं, कि वो खुद ये सजेस्ट कर सके कि वो क्या करना चाहते हैं. उनको सिर्फ ये कहने से कि बेटा तुम ये करो, बेटा तुम वो करो, बेटा तुम ये ना करो, बेटा तुम वो ना करो, उनको लगता है कि ये तो लेक्चर है और इसका कोई मायना नहीं है. लेकिन अगर आप उनके साथ ये बैठ के बात करें कि बेटा मुझे बता कि ये सब कुछ चल रहा है, क्या प्लान है आपका, कि आप कैसे चीज़ें हैंडल करना चाहते हैं, आप दिन में कितना पढ़ना चाहते हो, कितना खेलना चाहते हो, कितना टीवी देखना चाहते हो. अगर आप रात को टीवी देखना चाहते हो और उससे नींद नहीं आती तो आप शाम को टीवी देख लो, या दिन के वक्त टीवी देख लो, रात को टीवी ना देखो. पर उनसे
it's important to have that conversation, बजाय उनको ये बताना कि ये करो, ये ना करो, वो ना करो। कुछ चीज़ें हैं जो उनको बतानी पड़ेंगी कि अगर आप बाहर जा रहे हो, आप मास्क ज़रूर पहन के जाना बेटा। वो कोई उसमें दो राय नहीं है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, किसी से हाथ ना मिलाएँ, घर आके हाथ धोएँ वगैरह। लेकिन जिस चीज़ में उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं और उनकी इच्छा के मुताबिक कर सकते हैं, वो ज़रूर फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें देते रहें। किसी ने ये पूछा कि स्टूडेंट्स के लिए कि फ़ोकस करना बहुत मुश्किल होता है ऑनलाइन, हेडेक हो रही है, पेन हो रही है आइज़ में। टेकिंग फ्रीक्वेंट ब्रेक्स फ्रॉम द स्क्रीन हेल्प्स कि अगर आप कॉन्स्टेंटली स्क्रीन को देखते रहेंगे तो वाक़ई सिर दर्द हो सकता है, फ़ोकस कम हो सकता है। लेकिन अगर आपको मौका मिलता है कि आप 40 मिनट स्क्रीन देख के खिड़की के बाहर कहीं दूर देखें या घर में एक चक्कर लगा लें या 5-6 बार 5-6 मिनट के लिए जहाँ पे आप खड़े हुए हैं वहीं पे आप दौड़ लें, ताकि आपके दिमाग को, आपकी आँखों को ब्रेक मिल सके स्क्रीन से, उससे मदद मिलती है। आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे काफ़ी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं मनीषा जी? यस सर, मेरा यही एक रिलेटेड सवाल भी है कि ऑनलाइन क्लासेस मिनिमम 6 to 7 आवर्स की तो हो ही रही हैं, स्कूल की तरफ से हो या कॉलेज की तरफ से हो। तो हमारा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि पूरे दिन के बाद किसी की आँखों में पेन हो रहा है, किसी का हेडेक हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए? क्या ये फिज़िकली हेल्थ से रिलेटेड है या फिर हो सकता है मेंटली हेल्थ से भी रिलेटेड हो? दोनों चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है। वो कहते हैं कि आँखों के डॉक्टर आमतौर पे कहते हैं कि जब आपका फ़ोकस किसी पास की चीज़ पे रहता है, तो जी, थोड़ी देर के लिए अगर आप दूर देखेंगे, तो जो आँख के मसल्स आपको पास का फ़ोकस कर रहे हैं, उन्हें आराम मिलेगा और अगर आप किसी दूर कोई पेड़ है या चिड़िया है, उस पे 2-4 मिनट के लिए देखेंगे। तो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स आर इम्पोर्टेंट। अगर 5-6 घंटे की क्लासेस भी हो रही हैं, तो यहाँ पे तो काफ़ी टीचर्स कर रहे हैं कि 45 मिनट की क्लास के बाद बच्चों को 2-3 मिनट का ब्रेक दे दिया ताकि वो स्क्रीन से दूर देख सकें। आई एम नॉट श्योर कि इंडिया में ऐसा कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पर टीचर्स को सजेस्ट किया जा सकता है। आई एम नॉट श्योर कि वो भी काम करेगा या नहीं। लेकिन थोड़ी देर के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए भी आप अपनी नज़र स्क्रीन से हटा लें, तो उससे इम्प्रूवमेंट होगी। रात को सोना बहुत ज़रूरी है, तो बच्चों को ये कहना कि रात को सोने से पहले अगर वो फ़ोन पे हैं या टीवी पे देख रहे हैं या कंप्यूटर पे हैं, तो उससे दिमाग स्टेज़ वेरी एक्टिव और दिमाग को सोने में मुश्किल होती है। तो यहाँ पर तो आमतौर पे इंसिस्ट करते हैं कि सोने से घंटा 2 घंटा पहले आप अपने स्क्रीन्स बंद कर दें। अगर नींद नहीं आ रही, तो आप बिस्तर से उठ के किसी कुर्सी पे बैठ के किताब पढ़ने की कोशिश करें। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन कम स्टिमुलेट होता है, बजाय इसके कि आप हिलता हुआ स्क्रीन देख रहे हैं या ज़ोर से म्यूज़िक सुन रहे हैं या टीवी पे चीज़ें हिलती हुई देख रहे हैं। तो दिमाग को फिर से फिज़िकली या मेडिकली ब्रेन को फिर से नींद आने में आसानी रहती है, अगर आप कुछ मोनोटोनस करते हैं जैसा कि किताब पढ़ना है। Another तो thing नेक्स्ट is people are using filters to the screen so that the brightness won't affect their eyes, and sometimes also checking the eyeglasses, are they changing the power of it that can lead to headaches. And what Dr. Vasudeva mentioned, taking a break. Again, I don't think on the other side they're also expecting you to be there 24/7, sticking to this thing, and in between going and doing some stretches. And if you are young, then you can do some push-ups and do some sit-ups and yoga postures in between. And also, a lot of people are doing combined studies online. दोस्तों के साथ group discussion करना online पे, because that could be way of you interacting and talking more, not necessarily looking at the screen all the time. It would be more audio. So can you please suggest some common and easy meditation techniques that we can use at home? One technique you can use it is that basically we can all demonstrate right now.
sit in your own places where you are and close your eyes. I'm trying to do the same thing. And at this moment, I'm trying to see what are all the sounds I could hear surrounding me in this room. I'm listening to the clicking of the clock. I'm hearing some ice falling in the fridge. And remotely, I heard a voice on the Zoom. And I'm listening to my own breath sounds. As I am trying to focus the sounds that I'm listening, I'm not thinking anything else, but I am focusing all my attention on the sounds I'm hearing. Of calmness is also in my mind. And I try to maintain this level of calmness as long as I can, so that when I come out of this meditation, I can continue to maintain it. And we can slowly open our eyes now. Thank you, sir. This is a technique of whichever sense you want to use. I think sounds is much more easier. But if you're in a busy street with all the traffic honkings going on, it could be still tough, but you can try it. But otherwise, if you have any sense of isolation where you could, that would help too. Okay, sir. That is the Sir. simple technique available everywhere. Go ahead, ma'am. Okay. So जो फैमिली में ओल्ड एज पीपल हैं, जैसे हमारे दादा दादी हैं, उन्हें साइंटिफिक टेक्निकलिटीज नहीं पता है कोविड के बारे में. सो वो कंटिन्यूअसली फियर करते रहते हैं, चीजों को अज्यूम करते रहते हैं कि ये ना हो जाए, कुछ रूमर्स पे या जो न्यूज की नेगेटिविटी है उस पे. तो उन्हें कैसे कन्विंस किया जाए, कैसे उनको काम किया जाए उनके माइंड को? एक है कि हमारे हिंदू धर्म और इंडिया में तो हम जो कर्म सिद्धांत है ना, उनको हम सभी लोग मानते हैं. जी. जो भगवान हमको जो विधि कहते हैं, कुछ लोग फेट कहते हैं, फिर लेकिन कर्म जो होना है वो हो जाएगा. हमारा जो कर्म में लिखा है वो हो जाएगा, कोई नहीं दूर हो. जो प्रारब्ध है वो हो जाएगा. और भगवान है एंड ही विल प्रोटेक्ट यू. फिर लेकिन हमको जो प्रार्थना हम करते हैं उसमें हमको फेथ रखना चाहिए. हम प्रार्थना करते हैं फिर लेकिन हम बैक सीट ड्राइविंग भी करते हैं. तो if you're truly faithful, stick to it and he will take care of you. And you cannot get rid of the karma. So if it has to happen, it's going to happen. Only one thing, this is the way it is happening. जो तरीका में हो रहा है हमको ये एग्रीबल नहीं है. लोग वैसे ही बीमार पड़ रहे हैं. कैंसर से होता है, मलेरिया से होता है, दूसरे तरफ से होता है. अब तो है कोरोना के तरफ से हो रहा है. कोरोना जाने से लोग फिर भी they will still get sick and will start losing people. Nobody is going to live forever. ठीक है. तो ऐसा है कि हम रेडी नहीं है, अभी जाने के लिए कोई तैयार नहीं है. लेकिन not that everybody is going to die too. If you take 100 patients, 7 patients are dying, and now it is coming down to 5. It will come down to 2. So there are 90% of people who are living.
Does it make sense? Yes, sir, of course. So, अगर कोई इंसान अपनी कुछ हैबिट्स चेंज करना चाह रहा है जो उसे लग रही है कि उसकी लाइफ में ये हैबिट्स ठीक नहीं है, so how he or she should initiate and what action should he or she take to get rid of that habit? पहले तो उनको क्वेश्चन पूछना है कि मुझे क्यों बदलने की क्या जरूरत है, जी। नहीं बदलने से क्या हो जाएगा। कोई दारू पी रहे हैं और कोई नहीं तो सिगरेट पी रहे हैं और कोई तो लाइक यू नो दे आर स्पेंडिंग मनी एंड बेटिंग लाइक दैट। तो वो बदलने के लिए तो जब सोचना होता है मुझको बदलना है, क्योंकि क्यों बदलना है, बदलने से मुझे क्या फायदा होगा, ठीक है, एंड किसके लिए, अपने आप कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो वंस यू नो दैट व्हाई हैव टू डू इट, देन यू हैव टू हैव, उनको एक्शन प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 3 चीजों को एक ही बार बदल नहीं सकता हूँ। तो 1 2 3 ये 3 चीज मुझे बदलना है, उसमें तो क्या प्रायोरिटी है मुझे, which one I need to really have to change, तो only choose one thing, as not कि I want to change everything। कितना टाइम लगेगा बदलने में, ऐसा नहीं है कि मैं 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो रियलिस्टिक होना चाहिए। और मुझे एक चीज चूज किया है तो इसमें 2 हफ्ते लगेंगे, 3 हफ्ते लगेंगे, इसके लिए मेरा मोटिवेशन है या नहीं। प्लान बनने में कोई फायदा नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। जी सर। तो ऐसा है कि इफ मैं फेल हो जाने से क्या हो जाएगा मुझे, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी फ्रैंक विथ योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि न्यू ईयर नहीं है, अभी फर्स्ट ईयर की न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं है, दिस इज अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, जी। ठीक है। योर फ्यूचर इज अहेड ऑफ यू। ऐसा है कि आप कोई पूछ रहे कि माय ग्रेड्स आर लो, व्हाट हाउ कैन आई डू, चैलेंज करना चाहिए। अभी तो एवरी स्टूडेंट इज गोइंग थ्रू सेम थिंग and I'm not an exception. So now everybody is running in the mud, ठीक है। So everybody will be slowed down. Everybody is going against the tide. So no, nobody is swimming faster than you. So then you have to see, now it is your own self ability, how much you really want to do it. Yes, this is a tough thing, but it is not going to be there forever. 3 साल के बाद अलग होगा चीज। So I want to keep my long-term goal in my mind, not the short-term goal. Okay. Once failing is not that you failed forever. ठीक है ना? This is a temporary thing. जी। If you look back 4 years ago, how you were thinking, the grades, do you still remember? The classes, you still remember? Nobody cares about it. So you need to have a perspective of life. What is the purpose of my life? So you need to have some deeper questioning sometimes. सर यूजुअली हम बेड टाइम पे, सोते टाइम या फिर सुबह के टाइम हम वही चीजें माइंड में सोचते हैं कि हमने पूरे दिन किया क्या, या फिर हमें नेक्स्ट डे करना क्या है, हमारे डे का पूरा रूटीन क्या है। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं हमें रूटीन के अलावा भी अपने माइंडफुलनेस के लिए, अपनी पॉजिटिविटी के लिए बेड टाइम और अर्ली टाइम, सुबह के टाइम हमें सोचने चाहिए? Yes, it will help. लेकिन what kind of things we should think? First of all, you need to have a worry time though, because when you go to bed, you keep on worrying about the stuff. So if you want to go to bed at 9 p.m., have 7 to 8 o'clock for the worry. So you say, I'm going to worry about half an hour, all the things I want to worry before I go to bed. You need to take a pen and a paper, write down your worries. So when you go to bed around 9 o'clock, if you start worrying, remember, I already worried about that. So then what I can do now? Then you can start thinking, what would make me happy, kind of a thing. Jo bhi hai. If you like a music, then listen to that. Or if you like a prayer, do that. Or if you wanted to read a book before you go to bed, you can. And so first you finish the worry part, give attention to the worry, automatically other things will pop up. Dr. Vasudeva? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर कबूरू के अगर आप टाइम अलग से निकाल दें कि मुझे इस टाइम में मैं हर चीज़ की फ़िक्र करूँगा,
और वो टाइम बेड टाइम से दूर कर दें। तो अगर रात को आपने 10 बजे सोना है, आप कहो कि मैं 7:30 से 8 तक जिस चीज़ की फ़िक्र करनी है, ये मेरी फ़िक्र का टाइम है, ताकि बाद में आपको उसके बारे में फ़िक्र ना करनी पड़े। ये एक तरीका है। कुछ लोगों के लिए कुछ रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि रात को सोने से पहले मुँह धोना है, ब्रश करना है। मुँह धोना ज़रूरी नहीं है, ऐसा ये नहीं है कि मुँह गंदा होगा या कुछ जो धोना पड़े, लेकिन वो पानी के छींटे मुँह पे डालने से फिर से मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो जब पानी मुँह पे लगता है तो दैट्स अ डिफरेंट सेंसेशन, तो उससे फ़िक्र से ब्रेक मिल जाता है। या अब कुछ लोग जैसे डॉक्टर कपूर कह रहे थे पूजा करते हैं रात को सोने से पहले, कोई मंत्र करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं या कोई भी पूजा करते हैं, राम का नाम लेते हैं। उससे ये होता है कि किसी और चीज़ पे फ़ोकस आ गया ताकि बाकी की चीज़ें सोचने से कम हो सके। पर ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी भी है। अ, हम सब ये करते हैं, हम सब कोशिश करते रहते हैं कि ऐसा ना करें कि रात को सोने से पहले नेगेटिव चीज़ें सोचें या फ़िक्र करें या दिन में क्या कर सकते थे, क्या नहीं किया, अगले दिन क्या करना है, क्या नहीं करें। कई बार ये मदद करता है कि आप लिस्ट बना लें कि अगले दिन क्या करना है। एक बार वो लिस्ट बन गई, फिर वो रख दी साइड में कि आप ताकि उसके बारे में सोचना ना पड़े और सुबह आपको बार-बार याद ना दिलाना पड़े। अभी नितिन जी ने पूछा हाउ टू कोप विद नेगेटिविटी गोइंग ऑन अराउंड एंड हैंडल प्रेशर ऑफ स्टडीज़। प्रेशर स्टडीज़ का पहले भी था, कोविड से पहले भी था, कोविड के दौरान भी है, कोविड के बाद भी रहेगा। लेकिन डेवलपिंग सम सेल्फ केयर हैबिट्स जो आप अपने लिए कर सकें, जिससे आपको कुछ खुशी मिले, उससे मदद होती है। अभी कुछ 1-2 क्वेश्चन्स पहले कोई पूछ रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम का प्रेशर से कैसे डील करें। कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम अच्छा लगता है क्योंकि वो घर पर ही हैं। सिर्फ कमीज़ बदलनी पड़ती है, नीचे पजामा रह सकता है पैंट पहनने की बजाय। पर हर लोग अपनी-अपनी तरीके से डील करते हैं, लेकिन टेकिंग फ्रीक्वेंट ब्रेक्स फ्रॉम वर्क, कोई भी काम आप बार-बार करते रहेंगे। आप बॉडी बिल्डर्स को भी देखें, अगर वो 15 बार एक वेट लिफ्ट करते हैं, तो उसके बाद वो 30 सेकंड, 60 सेकंड की ब्रेक लेते हैं, इससे पहले कि वो फिर से जाके वही एक्सरसाइज़ फिर से करें। अ जो लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उससे चाहे 2 मिनट का ब्रेक लें, चाहे 1 मिनट का ब्रेक लें, अगर हो सकता है 5 मिनट का ब्रेक लें, कुछ और कर लें ताकि आपका ध्यान उस चीज़ से हट के फिर से जिस चीज़ पे आप कॉन्संट्रेट कर रहे हैं, उस पे जा सके और आप अपने लिए भी कुछ कर सकें, व्हिच इज़ गुड फॉर योर बॉडी, बजाए इसके कि सारा दिन एक ही जगह बैठे-बैठे कंप्यूटर पे स्टेयर करते रहें। Is there any question left from the audience? You can leave it in the chat box. Because my questions are done here. Manisha, I have sent you. Please check your chat box. Okay. सर इस नेगेटिविटी और पैंडेमिक का या फिर एक ये फियर का जो इफेक्ट चिल्ड्रंस पे हो रहा है, चिल्ड्रन पे हो रहा है, उसे हम कैसे हैंडल करें, कैसे उन्हें समझाएं, कैसे कन्विंस करें? बच्चों के जो फियर्स हैं उसे सुने कि उनको पैंडेमिक से क्या-क्या फ़िक्र हो रही है। कुछ बच्चों को ये फ़िक्र हो सकती है कि मम्मी-डैडी को कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? या ये फ़िक्र हो सकती है कि स्कूल के एग्ज़ाम्स कैंसल हो गए तो अगले साल क्या होगा? या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का क्या होगा? तो उन्हें एनकरेज करें कि और बताएँ कि बेटा सब बच्चों के साथ यही हो रहा है। अ, और अ, और वो क्या कर सकते हैं टू मेंटेन अ सेंस ऑफ कि उनको कुछ कंट्रोल है या वो बैलेंस कैसे ज़िंदगी में ला सकते हैं। डॉक्टर Yes. कपूर कुछ और आप कहना चाहेंगे? एक किसी ने पूछा सर गो अहेड। I think grief has been a major problem, especially where children lost their parents. Yes, sir. And so there will be
ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स उसके बारे में, तो यही बहुत साल वो कंटिन्यू होगा. And if you are an adult, you can help the child, क्योंकि उनको समझना नहीं आता है कि क्या हो गया, and the whole thing is very confusing for them. The best thing you can do is that children have a way of expression. Only one thing is you need to listen to them. Give them an opportunity. Don't, they may not able to talk like an adult immediately. फिर लेकिन being there for them, spending time, and बहुत की सहन होना चाहिए. Patience is needed. And their grief, जो उदासी है उनको अलग अलग तरीके से वो एक्सप्रेस हो जाता है. कुछ लोग बहुत चिड़चिड़ापन और नहीं तो शैतानी करना ये हो सकता है, और कुछ लोग गुमसुम हो जाता है, कुछ कोई से नहीं पूछते हैं, खेलना नहीं करते हैं, और पढ़ाई में तो फेल होना, ये सब की ये भी सब चीज हो सकता है. बच्चों में खाना नहीं खा सकते हैं. It's very difficult situation, but I think even for the adults, you deny whatever has happened, then you get upset, then you bargain, and finally you accept the loss. So I think being there, listening, and being patient with them, and you have to tell them that I am there for you. In any way you can communicate with them, even taking a walk with them, and just playing a ball with them. You could be silent, but still engaging them is somewhere. Sometimes you can help them out. Okay. Now I think we are done with all the questions, and I hope all your doubts have been cleared. I want to request all of Manisha, you. Yes, sir. Can I say something real quick? एक किसी ने पूछा था कि उनके एक colleague हैं जो who's a young person जो अपने माँ बाप से बात नहीं कर रहे, उनकी कैसे मदद की जा सके. तो उनसे उनकी अगर if he's willing to talk to you, उनकी बात सुनिए कि उनको क्या है, ये suggest कर सकते हैं कि माँ बाप से बात करके माँ बाप को तसल्ली शायद मिले थोड़ी सी. लेकिन कई बार लोग इतने डिस्पोंडेंट, इतने उदास हो जाते हैं कि लगता है कि मैं खुदकुशी कर लूं, ये जिंदगी कोई जीने की जिंदगी. अगर ऐसे थॉट्स आने लगे तो प्लीज डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिए. कुछ किसी ने पूछा था कि स्टडी अब्रॉड की चीजें आर चेंजिंग. दैट्स चेंजिंग फॉर एवरीवन. वीजा इश्यूज हो रहे हैं बाहर आने के लिए. ऑफ कोर्स पैंडेमिक की वजह से टेस्टिंग वगैरह हो रही है, पर ये सबके साथ हो रही है. सबकी जिंदगी कुछ किसी ना किसी तरीके से पॉज पे अड़ी हुई है 1.5 साल से. ये उम्मीद है कि जैसे चीजें ज्यादा कंट्रोल में आएंगी, थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल. पर मेरे पास कोई उसके लिए सजेशन नहीं है कि अगर स्टडी अब्रॉड प्लान्स बदलने पड़ रहे हैं या कुछ, तो I'm sorry, पर I don't know कि उसके लिए क्या किया जा सकता है. Sorry मनीषा, आप कुछ कह रहे थे. No, I think No. Taking on what Dr. Vasudeva was mentioning, think of this as a war. Everybody is a soldier. And हमको धीरज रखना चाहिए यहाँ पे. This is the time where you have to really fight and bring out the best in you. And 3 years from now, what kind of a patience you showed, perseverance you have showed, Shraddha, Atmastairona, that is the main thing now. And you got to believe in yourself and your abilities, and things will fall into place as long as you're watchful what is happening. Take the all information, all international organizations, all universities abroad, they're giving what they're going to do, how they're going to conduct. And so if you have that right information, obviously you can plan. Obviously it is a difficult time though, but nothing to give up. And there was one question saying, what are the symptoms of a panic attack? Dr. Vasudeva पहले ही बोला है कि क्योंकि जब पैनिक अटैक होता है, हमारे ब्रेन में, दिमाग में कुछ केमिकल्स रिलीज होता है. वो जो केमिकल हार्ट में जाने से हमको हार्ट बीटिंग ज़्यादा होता है. वो हाथ में जाने से पसीना हो जाता है. Sometimes they start having shivering. If the chemical
स्टमक में जाने से ऐसा होता है कि बटरफ्लाइज ज्यादा है, उनको बाथरूम जाने की जरूरत पड़ता है, कुछ लोगों को यूरिनेशन ज्यादा हो जाता है, और कुछ लोगों को ऐसा है कि वो केमिकल बस इफ इट इज स्टेज इन द ब्रेन यू मे फील लाइक डिजी, समटाइम्स यू थिंक यू आर फेंटिंग. So wherever the anxiety chemical goes to that particular body part, you will start having. Sometimes you may have all of them together. Your heart is beating fast, you're having sweaty palms, you have butterflies in the stomach, and you think sometimes your mind is blank, you cannot think about it. But this will be 10-11 minutes or maybe maximum 30 minutes रहता है, जिसको पैनिक अटैक कहते हैं हम. फिर लेकिन पूरा दिन एंजाइटी घबराहट होने से वो पैनिक अटैक नहीं है, उनको एंजाइटी कहते हैं. I hope that answers that question. Yes, sir. I think all the doubts have been cleared and all are satisfied with your answers. So at Okay. last, Go ahead, Manisha. yes, sir. So we are so thankful to both of you for such an interactive and fruitful conversation. It was so informative, and thanks for sparing your time and giving your precious time to us. So You're I welcome. would, thank you, sir. I would like to sum up some things that you have told us. I want to request all of you that keep these strategies and information in your memory and try to utilize them properly in your daily life. Like we can do breathing exercises, breathing techniques in yoga, do some meditation at home, do self-care and shift your mind so that it can distract from the worries and you can cope up from the anxiety you're facing. Limit media exposure, read about positivity, funny things, and motivational things. Care for your loved ones and talk to them, whether they are elders or the children or your loved ones and friends. Try to appreciate small things and take frequent breaks from your online sessions and studies. Talk to your family and be selective for the news, pages, and any kind of stuff you follow on social media or in TV. If you inculcate these small things in your thoughts and behaviors and your daily life, you will be able to stay strong, motivated, and contain a hope for the better, and your reactions will be more positive, calm, and satisfying. It will reduce your stress, anxiety, fear from your mind and provide you a more healthy and positive approach to see things and react about them. It will also act as strength to you and your family. So I hope आप इन छोटी छोटी चीजों को अपनी डेली लाइफ में एनकलकेट करेंगे, यूज करेंगे, तो ही हमारे सर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हम ना सिर्फ सुन के बल्कि उसे लाइफ में भी यूज करेंगे एंड इस सेशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं. थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना वक्त दिया. अभिकृति फाउंडेशन का हम लास्ट में धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी और आज हम सब इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड हुए और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमने गेन की. Thank you, Manisha, for organizing this. And we think it is a privilege to reach out to our fellow citizens there in India. It is a privilege for us. And stay safe, stay healthy. And definitely there is a light at the end of the tunnel. And Shubhratri for all of you. Dr. Vasudeva. Thank you very much. It was for the privilege of being here. Thank you, Dr. Kavuru, for inviting me as well. आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए. Shubhratri, good night. थैंक Stay यू hopeful. सर. Bye-bye. हम उम्मीद करते हैं कि जब भी हमें आपकी जरूरत दोबारा पड़े तो आप हमसे कनेक्ट कर पाएंगे और आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा होगा. Thank you so much. So shall we end the session? Yes. Thank you so much, sir. Thank you all of you to be connected in the session.
So I'm ending the session. Bye bye. Good night.